Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I'm Anaga representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about tips and tricks in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So now moving ahead to the today's topic. So the speakers are here. The presentation will be conducted by Mr. Prashant. So Prashant, are you here? Yes, ma'am. And the live demonstration by Ms. Payal. So Payal, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the resource person, Mr. Bhagwati Dhandaria. Sir, are you here? Okay. So I request Prashant and Payal to move ahead with your presentation. Thank you, ma'am. Hello, everyone. Myself Prashant, and I am here to represent the webinar on the behalf of Rajlakshmi Solution Private Limited. Welcomes to all of you. Ma'am, please share my webinar, please. Hello. Yeah. Vijay, please share the screen. Welcomes to all of you. Today we are going to discuss about tips and tricks in Tally. So let's begin. Move to the next point. Create multiple masters on single screen. You have a list of ledger or stock item to be created in a company. Chart of accounts provide you with facility so that you can create multiple masters on single screen, thereby easing the data entry process and saving a great deal of time. It also provides you with a flexibility to create masters of different types based on the parent group. जैसा कि हम डे टू डे वर्क में काम करते हैं तो उसमें हमको मल्टीपल्स लेजर हमको क्रिएट करने होते हैं, जैसे सेल्स रिलेटेड, परचेस रिलेटेड, एक्सपेंस रिलेटेड. तो टैली में हम गेटवे ऑफ टैली से 1 बाय 1 क्रिएट करते हैं, लेकिन टैली के आप ये फीचर यूज़ करेंगे तो उसमें एक साथ आप मल्टीपल लेजर बना सकते हैं और मल्टीपल ग्रुप्स वाइज और ओपनिंग बैलेंस भी उसमें ऐड कर सकते हैं. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. User defined primary group. In Tally Prime, there are 28 predefined groups, of which 15 are primary and 13 are subgroup. Along with the predefined group, you can create new group, accommodate your business needs. After creating the groups, if you want to alter the group of existing ledger, then you can do that as well. जैसे कि हमको पता है टैली में 28 प्रीडिफाइंड ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं प्राइमरी एंड 13 होते हैं सब ग्रुप. इसके अलावा जो हमारे बिजनेस रिलेटेड और भी कुछ ग्रुप क्रिएट करना है और उसके रिलेटेड हमको रिपोर्ट देखना है, जैसे सन्ड्री डेटा स्टेट वाइज या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको करना है, तो वो भी हम यहाँ पे टैली से कर सकते हैं. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. क्रिएट अल्टर मल्टीपल ग्रुप्स ऑन सिंगल स्क्रीन. जैसा कि in Tally Prime, apart from the given predefined groups, as you can create groups as per your business need, you can create a group one at a time or multiple groups in one go. You can create groups under existing group or create a group under and then select the nature of group. The procedure show one by one under the existing group. तो क्या हमने पहले पॉइंट में देखा कि जैसे मल्टीपल लेजर हम क्रिएट करते हैं, उसी तरह मल्टीपल ग्रुप्स भी बना सकते हैं और जो प्री डिफाइंड ग्रुप है या फिर हमने जो ग्रुप बनाया है उसको हम एक साथ अल्टर भी कर सकते हैं उसमें. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज. क्रिएट allies फॉर लेजर. Allies function in Tally is good function. It create alternate names of ledger and names of item in second. During ledger creation and item creation,
Allies is available. We can create more than one allies as per our convenience. While passing entry in Tally, allies can be selected as party name or item name. Allies is facility to user to give short name to ledger and item. और जैसा कि हम लेजर बनाते हैं या फिर कोई स्टॉक आइटम बनाते हैं उसको नेम देते हैं और उसके नीचे एक ऑप्शन रहता है अलाइज करके, तो उसमें हम उसका जो पर्टिकुलर कोड रहेगा या फिर लेजर का शॉर्ट नाम रहेगा तो हम उसको दे सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन एंट्री करते समय जो हम वो शॉर्ट नाम या फिर वो प्रोडक्ट कोड डालेंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा और उसका नाम शो होगा उधर। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। Create many businesses with the same configuration. Do you own multiple companies? If so, you can the same configuration settings to create several firms in Tally Prime to maintain transaction independently for each firm and handle return appropriately. Tally allow the creation of past companies configuration in new companies. जैसा कि हमारे पास मल्टीपल बिजनेसेस रहते हैं तो हमको मल्टीपल डेटा भी वहाँ पे मेंटेन करना होता है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग जो डेटा है या फिर कोई और कंपनी का डेटा है उस रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें रहते हैं तो सेम कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमको एक नए कंपनी में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो ये छोटे से ट्रिक्स से हम उसको बना सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। वाउचर्स एंट्री फॉर अनदर कंपनी। टैली प्रोवाइड ट्रांसफर ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनीज। तो जैसा कि हम देखते हैं मल्टीपल कंपनीज हमारे पास होती है तो उस रिलेटेड हमारे पास सेम ट्रांजैक्शन थोड़े बहुत सिमिलर ट्रांजैक्शन रहते हैं या फिर कुछ सेम ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस रहते हैं तो उसको अगर हमारे पास रहेंगे तो हर एक कंपनी में हमको अलग अलग एंट्री करना होता है। तो टैली का एक छोटा सा ट्रिक है, इसकी मदद से आप एक बार अगर एंट्री आपने एक कंपनी में कर दिया तो नेक्स्ट कंपनी में आपको एंट्री करने का ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली उसमें पास हो जाएगा एंट्री। और नेक्स्ट है वाउचर नंबरिंग। You can select required method of voucher numbering from the voucher type creation और अल्ट्रेशन स्क्रीन। वाउचर नंबरिंग में हमको 3 टाइप के वहाँ पे फीचर मिलेंगे। एक होता है ऑटोमेटिक और होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड और थर्ड होता है मैनुअल। ऑटोमेटिक में क्या होता है, जब भी हम वाउचर नंबर ऑटोमेटिक करते हैं तो वाउचर बनाते टाइम वो ऑटोमेटिकली नंबर देता है। और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में और जो ऑटोमेटिक नंबर तो आता है लेकिन हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और मैनुअल में वहाँ पे आपको प्री डिफाइन ऑलरेडी नंबर नहीं आएगा लेकिन आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ट्रांजैक्शन का नंबर भी याद रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्टार्ट वाउचर नंबरिंग। यू कैन restart the numbering of your voucher by creating a new voucher type and specify the applicable dates, prefix, suffix and other details as needed। जैसा कि हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल आएगा तो उसमें हम एक नए फाइनेंशियल करेंगे और फ्रेश वाउचर नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये टैली में फीचर दिया गया शॉर्ट नंबर और डेट के साथ वहाँ पे एप्लीकेबल कर सकते हैं और उसको प्रीफिक्स सफिक्स दे सकते हैं, जो भी वो डिटेल्स है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जहाँ पे वो जो डिटेल देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको वाउचर एंटर करते टाइम वहाँ पे शो हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। Master creation shortcut navigation keys. Tally Prime shortcut to almost all functions. Learning Tally shortcut keys would be the first one to enhance the with the shortcut key. You don't have to exit Tally and establish a master when inputting transaction in Tally Prime and need to build a new ledger। और जैसे कि हमको पता होता है कि ट्रांजैक्शन करते टाइम कभी लेजर वहाँ पे मिलता नहीं है तो या फिर बना नहीं होता है, वो हमको फिर वापस से टैली वो एंट्री का स्क्रीन एग्जिट करके गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन से लेजर बनाना होता है। तो टैली का एक जो शॉर्टकट कीज़ है उसका इस्तेमाल करके हम डायरेक्टली वो ट्रांजैक्शन पे ही लेजर क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई स्टॉक आइटम होगा तो वो क्रिएट कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।
Thank you, Prashant, for nice presentations. Hello everyone, myself Payal Mistry. I am representing live demo on behalf of Radlakshmi Solutions Private Limited. Ma'am, my screen is visible? Yeah, it's visible. Okay. और जैसे कि प्रशांत सर ने आपको बताया कि आज का हम लोग का टॉपिक है ट्रिप्स एंड ट्रिक्स इन टैली प्राइम। आज मैं आपको टैली प्राइम में जो भी इन्वेंट्री रिलेटेड जो भी स्मॉल पॉइंट है उसके रिलेटेड बताने जाने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है क्रिएट मल्टीपल ग्रुप्स एंड लेजर्स। जैसे कि प्रशांत ने आपको बताया कि हम लोग टैली प्राइम में मल्टीपल ग्रुप्स एंड लेजर्स क्रिएट कर सकते एक साथ। जैसे कि यहाँ पे मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाती हूँ, वहाँ पे लेजर्स या ग्रुप्स आपको जो भी क्रिएट करना है, एग्जांपल मैं ग्रुप्स में जाती हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है मल्टी मास्टर करके, वहाँ पे मल्टी क्रिएट में क्लिक करना है। यहाँ पे अभी आपको जो भी ग्रुप्स क्रिएट करना है या फिर जो भी लेजर क्रिएट करना है, एग्जांपल जैसे कि आपको ग्रुप्स के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है, डेटर्स लेना है, आप जो भी लेना है एक साथ में। जैसे कि मैं पार्टीज लेती हूँ डेटर्स की, सन्ड्री डेटर्स, इसके अंदर जितने भी मेरी पार्टीज है वो एक साथ में मैं यहाँ पे पार्टी क्रिएट करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ रोहन ट्रेडर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने यहाँ पे रोहन ट्रेडर्स लिखा हो, यहाँ पे अंडर यूजर्स में उन्होंने ऑटोमेटिकली सन्ड्री डेटर्स ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था इसके लिए। जैसे कि दूसरा सेकंड पार्टीज में लेती हूँ रोहन ट्रेडर्स। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं एज इट इज, आप ऐसे ही जितने भी आपको ग्रुप्स या फिर लेजर्स क्रिएट करने हैं, आप एज इट इज यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स एंड लेजर्स क्रिएट कर सकते हो। हम लोग का सेकेंड पॉइंट है क्रिएट मल्टीपल अलायंस फ्रॉम लेजर्स। तो मल्टीपल अलायंस के लिए हम लोग को क्रिएट में जाना है, गेटवे ऑफ टैली पे लेजर में आती हूँ। यहाँ पे देखिए आपको नेम के नीचे अलायंस हो जाए, जैसे कि आपका कोई पार्टी है, पार्टी में जैसे कि आपने अभी जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे मैं एक पार्टी क्रिएट करती हूँ आरके क्रिएशंस। अभी यहाँ पे अलायंस में मैं उसके रिलेटेड कुछ भी लिखती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ आरके, देन यहाँ पे और एक ग्रुप क्रिएट और एक अलायंस लेती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इसका बिजनेस है रबर्स का, तो यहाँ पे मैंने रबर्स लिया। जैसे मैं यहाँ पे फिर से रबर्स लूंगी, देखिए यहाँ पे वो डुप्लीकेट करके आएगा। अगर आप वापस वही अलायंस लेंगे तो आपको डुप्लीकेट करके बताता है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आरके क्रिएशन के नाम से एक अलायंस क्रिएट किया। तभी देखिए यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अभी देखिए यहाँ पे मैंने आरके क्रिएशन के अंदर दो अलायंस लिए हुए, एक आरके और रबर। इसलिए देखिए मैं यहाँ पे सेव करती हूँ। जब आप एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे मैं सेल्स की एंट्री में आई, एग्जाम्पल अगर आप सेल्स की एंट्री पास करें, अगर आपको प्रॉपर स्टॉक का पार्टीज का नाम पता नहीं है, तो आपको उसके अलायंस का भी नाम पता रहेगा, फिर भी वो ऑटोमेटिकली पकड़ रहते। जैसे कि यहाँ पे आरके लेती हूँ, तो देख सकते हो आप यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे आरके क्रिएशन पकड़ लिया है। एज इट इज आपको जितने भी आपको यहाँ पे अलायंस क्रिएट करने हैं, आप यहाँ पे मल्टीपल अलायंस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा थर्ड पॉइंट है न्यू कंपनी विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि प्रशांत ने आपको बताया कि हम लोग जो कंपनी में हम लोग ने जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, एज इट इज मुझे वही कॉन्फ़िगरेशन मेरी न्यू कंपनी में चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं F11 में आई, देखिए यहाँ पे मैंने कॉस्ट मेंटेन अकाउंटिंग अनेबल बिल वाइज वो सब यहाँ पे यस रखा है। मेंटेन इन्वेंट्री यहाँ पे मैं नो कर देती हूँ, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अभी एज इट इज यही कॉन्फ़िगरेशन मुझे मेरी न्यू कंपनी क्रिएट करूंगी, उसमें जाती यहाँ पे मैं अल्ट के करती हूँ क्रिएट कंपनी, देन यहाँ पे मैं लिखती हूँ लिमिटेड महाराष्ट्र, एंड इसे मैंने सेव कर दिया। सॉरी, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, इसे मैं यस करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ से एक न्यू कंपनी क्रिएट करती हूँ, सी महाराष्ट्र। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मैंने मेरे जो सेम कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन था
एज इट इज, ये कंपनी में एज इट इज कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यू कंपनी विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। मैं 4.1 पे आती हूँ, वाउचर एंट्री फॉर अनदर कंपनी। जैसे कि प्रशांत ने आपको बताया कि हम लोग एक कंपनी का ट्रांजेक्शन दूसरे कंपनी में भी हम लोग कर सकते हैं, उसको एक ट्रिक है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कंपनी ओपन करती हूँ मेरी, जिसमें मैंने एक भी एंट्री पास नहीं की है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक एबीसीडी लिमिटेड करके मेरी एक कंपनी है, जिसमें मैंने डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिस्टिक और सेल्स, यहाँ पे मैंने एक एंट्री पास की है, आप देख सकते हो। एज इट इज यही एंट्री मुझे मेरे दूसरे कंपनी में भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपका सेम लेजर, सेम पार्टी और सेम स्टॉक आइटम होना भी जरूरी है सेम एंट्री के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे अल्ट F3 करेंगे, यहाँ पे राहुल लिमिटेड कंपनी में आप एंटर करोगे और इसे कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे, तो देखिए वही एंट्री ऑटोमेटिकली राहुल लिमिटेड कंपनी में चलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे राहुल लिमिटेड कंपनी में आई, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टैटिस्टिक, सेल्स, ये देख रहे हैं, ये एंट्री एज इट इज वो यहाँ पे शो करी। एज इट इज हम लोग, अगर आपकी कोई और कंपनीज है जिसमें आपकी सेम कंपनीज का वर्क होता है, तो आप एज इट इज ऐसे भी वर्क कर सकते हैं। फिर हम लोग का 5th पॉइंट है वाउचर नंबरिंग। तो वाउचर नंबरिंग में जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर्स दिए हुए हैं, ये मेरे ऑटोमेटिक मैनुअल्स नंबर है। यहाँ पे मेरे 3 4 5 नंबर दिया है, यहाँ पे मैंने 3 नंबर दिया और यहाँ पे मैंने 4 नंबर दिया हुआ। जैसे कि यहाँ पे मैं सेल्स के वाउचर टाइप में यहाँ शॉर्टकट से जाती हूँ। यहाँ पे मेथड वाउचर नंबर है, जैसे कि प्रशांत ने आपको बताया कि मैं ऑटोमेटिक मतलब वो ऑटोमेटिकली नंबर ले लेता है, और ऑटोमेटिक मैंने मतलब हम लोग चेंज भी कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिक भी ले लेता है। और मैनुअल मतलब वो मैनुअल नंबर रहता है, और लेकिन आपको आगे का नंबर याद रखना पड़ता है। तो जैसे कि वो मेरा पहले ऑटोमेटिक नंबर है, तभी मैं जैसे कि उसको ऑटोमेटिक करूंगी तो वो मेरा पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे 3 4 नंबर लिया था, लेकिन मैंने ऑटोमेटिक किया तो उसने नंबर चेंज कर लिया, उसके हिसाब से उसने डिफाइन कर लिया 1 2 3 नंबर से। एज इट इज अगर हम लोग मैनुअल करेंगे तो हम लोग के जो आगे के नंबर हम लोग को याद रखने होंगे, वो हिसाब से हम लोग और मैन्युअली हम लोग को वो टाइप करना पड़ता है। हम लोग का 6 पॉइंट है रिस्टार्ट वाउचर नंबरिंग। जैसे कि जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग का जो न्यू ईयर आता है हम लोग वहाँ पे चेंजेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सेल्स के वाउचर टाइप में जाती हूँ, यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक मैनुअल लेती हूँ, यहाँ पे मैं यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में यस करती हूँ। जैसे कि हम लोग का स्टार्टिंग का नंबर अभी हम लोग का आ रहा है 1 अप्रैल 2023, तो जैसे ही मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2000 सॉरी 1 अप्रैल 2024 करूंगी तो वो मेरा नंबर रिस्टार्टिंग हो जाएगा, मतलब आप जब भी न्यू एंट्री करोगे तो वो फ्रेश एंट्री से स्टार्टअप करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं रिस्टार्ट वाउचर नंबरिंग। 7 पॉइंट है यूज डिफाइंड प्राइमरी ग्रुप। जैसे कि आपको बताया कि 28 सब डिफाइंड ग्रुप होते हैं, उसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप्स रहते हैं एंड 13 सब ग्रुप्स रहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अल्टर्स ग्रुप्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ग्रुप्स क्रिएट किया हुए हैं। अभी मैं यहाँ पे क्रिएट में जाती हूँ ग्रुप्स के लिए। अभी आपको यहाँ पे ग्रुप का नाम, जैसे कि यहाँ पे लिखती हूँ मैं राजेश करके, यहाँ पे उसके अंदर आपको जो भी ग्रुप्स लेना है, जैसे कि वो आपका इनकम्स है या फिर आपका डिपॉजिट है, करंट असेट्स है, करंट लाइबिलिटीज है, एज इट इज यहाँ पे आप अंडर उसके ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, उसे हम बोलेंगे यूजर डिफाइंस प्राइमरी ग्रुप। बाद में मास्टर क्रिएशन शॉर्टकट नेगेटिव स्किल। तो जैसे कि यहाँ पे शॉर्टकट्स की, जैसे कि आपको भी पता है कि टैली प्राइम से हम लोग को बहुत सारी शॉर्टकट्स की मिली है। जैसे कि मैं यहाँ पे वाउचर्स में गई, अभी यहाँ ऑलरेडी इतने पार्टीज हम लोग की क्रिएटेड है, बट अभी ये पार्टी में से हम लोग को एक न्यू पार्टी भी क्रिएट करनी है। इसके लिए हम लोग को पहले टैली के गेटवे ऑफ टैली में आना होता था, लेकिन अभी हम लोग को ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्टली शॉर्टकट दिया है ऑल्ट सी, आप यहाँ से डायरेक्टली पार्टी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं करती हूँ रमेश कंपनी क्रेडिटर्स एंड कंट्रोल, ऐसे हो।
ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ से डायरेक्टली पार्टी क्रिएट कर सकते हो, स्टॉक आइटम वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको गो टू का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जहाँ से आप जो भी आपको रिपोर्ट्स देखना है या व्यू करना है, आप यहाँ पे लिखोगे या फिर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे टैली प्राइम में डेली के लिए आपको यूज करने के लिए, इन्वेंट्रीज के लिए दिए गए हैं रिपोर्ट्स, जो आप डेली लाइफ में यूजफुल कर सकते हो। थैंक यू फॉर दैट्स माय साइड। Thank you so much, Prashant and Payal, for your presentation. So if you have any questions related to today's session, please do connect your key account manager for any questions or any support or any kind of new requirements. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to the social media. Thank you everyone for joining the today's session. So now I'll wind up the session. Thank you.